Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to AIMS tutorial for accounts. In this video, I'll be explaining the chapter partnership under Unit 4, Chapter 4 for intermediate second year students of State Board of Telangana. Let us have a problem. Question number 3, page number 166. A and B are partners sharing profit and losses in ratio 3:2 respectively. So who are partners here? A and B, and their profit sharing ratios are given as 3:2. So what do you mean by 3:2? So we'll be adding 3 plus 2, we'll be getting 5. So whatever the amount is to be distributed among A and B, it should be divided into 5 shares, from which 3 shares belongs to A and 2 shares belongs to B. जो भी अमाउंट बांटना रहेगा आप उसके 5 हिस्से करेंगे. तो अपने को 5 हिस्से कैसा मालूम हो रहा? इन दोनों को ऐड कर रहे, 3 plus 2 इट बिकम्स 5. तो 5 हिस्से में डिवाइड करेंगे, जिसमें से 3 हिस्से जो है ना A के रहेंगे और 2 हिस्से B के रहेंगे. 3 shares belongs to A and 2 shares belongs to B. A contributed rupees 2 lakhs and B contributed rupees 1,50,000 towards their capital at the beginning of the year. तो जब A बिजनेस में आया था बंदा, he has invested 2 lakhs and B has contributed 1,50,000 as their capital. Their drawings during the year amounted to rupees 10,000 and 12,000 respectively. तो A बिजनेस में से कितने पैसे विथड्रॉ करा? 10,000. B कितने पैसे विथड्रॉ करे? सो है 12,000. So what are drawings? The amount which is withdrawn by the partner for the amount which has been withdrawn by the partners for their personal use is known or called as drawings. Next, Mr. A is entitled to a salary of rupees 800. तो यहाँ पे A को सैलरी मिल रही, कितनी मिल रही? 8,000 रुपीज़ मिल रही. And B to be given a commission of rupees 10,000. B को क्या मिल रहा? कमीशन मिल रहा, 10,000 का कमीशन मिल रहा. Interest on capital is to be provided at the rate 10% per annum. तो यहाँ पे ये लोग जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं 2 lakhs और 1,50,000, इस पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा? 10,000 पर एनम मिल रहा. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंटेड टू रुपीज़ 500 एंड फॉर ए एंड रुपीज़ 600 फॉर बी. तो ए और बी जो पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, ए इज विड्रॉइंग 10,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, बी इज विड्रॉइंग 12,000 फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म फॉर पर्सनल यूज. सो ए इज पेइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ रुपीज़ 500 एंड बी इज पेइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ रुपीज़ 600. नेट प्रॉफिट्स बिफोर अबव एडजस्टमेंट्स अमाउंटेड टू रुपीज़ 62,000. तो ये पूरे एडजस्टमेंट्स करने से पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, ये सब एडजस्टमेंट से पहले नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? इट इज गिवन एज 62,000. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. तो वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के कितने मेथड से? 2 मेथड से, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. यहाँ पे आपको कौन से मेथड से बनाना है? अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. सो हियर वी आर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. द फॉर्मेट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज particulars amount rupees. Towards extreme left you will be writing DR debit and towards extreme right you will be writing CR credit. So first let us complete P&L appropriation account, then we will discuss about partners capital account. So profit and loss appropriation account कैसा शुरू करते हैं आप? The net profit which is given in the question that will be recorded on credit side. So net profit before any of the above adjustments amounted to rupees 62,000, which will be recorded here as by net profit brought down. By net profit brought down 62,000. Then it will be debited with interest on capital, salary to partner, commission to partner and any profit which is transferred to general reserves, and it will be credited with interest on drawings. So अब यहाँ पे देखिए ये लोगों का कैपिटल और ड्राइंग्स के बाद क्या दिया हुआ है? मिस्टर ए इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ रुपीज़ 8,000 and B is entitled to be given a commission of rupees 10,000. Interest on capital is to be provided at 10% per annum. तो पहले सैलरी दिया हुआ है, सैलरी लिख देंगे. To salary to A account. तो सैलरी कितना देना है? A is entitled to receive a salary of rupees 8,000. फिर इसके बाद और क्या देना है? To commission to B account. तो कमीशन B को कितना देना है? 10,000. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम. तो यहाँ पे ये लोग जो इन्वेस्टमेंट करें 2 lakhs और 1,50,000, इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है. अगेन इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे ए और बी का, ए का कैपिटल क्या है, इट इज़ 2 lakhs। इस पर 10% इंटरेस्ट देना है आपको, 10 divided by 100, देन इट विल बी 20,000। नेक्स्ट बी कैपिटल, बी का कैपिटल कितना है, 1,50,000, जिस पे 10% इंटरेस्ट देंगे आप, अगेन 10 by 100, इट विल बी 15,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंटेड टू ₹500 फॉर ए एंड 600 फॉर बी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड एज बाय interest on drawings account. For A it is 500 and for B it is 600, so total will be 1100। अब आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले लिख के सैलरी और कमीशन बाद में लिख सकते हैं, या जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसा लिख दीजिए, सैलरी टू ए, कमीशन टू बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ विल बी बैलेंसिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट to find out whether there is profit which is to be distributed among the partners or there is loss which is also to be distributed among partners in their profit sharing ratio 3:2। तब इसका टोटल करिए आप, 62,000 प्लस 1100 63,100 आ रहा, और इसका टोटल देखिए आप 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 8 48, 48 प्लस 5 53,000 आ रहा। सो हियर द टोटल इज 63,100। 63,100 कैसा है, 62,000 प्लस 1,100, 63,100, और यहाँ का टोटल देखिए आप 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 8 48, 48 प्लस 5 53,000। तो दोनों में कौन सा टोटल ज़्यादा है, 63,100 ज़्यादा है। सो 63,100 विल बी रिकॉर्डेड ऑन both the sides of profit and loss appropriation account। 63,100 will be recorded on debit side of profit and loss appropriation account। 63,100 will be recorded on credit side of profit and loss account। अब यहाँ पे डेबिट का, क्रेडिट का टोटल आया था आपको 63,100, जबकि डेबिट का आया था 53,000। तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, ये अमाउंट विच इज लेफ्ट आउट इज 10,100 विच विल बी द प्रॉफिट, एंड दिस प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए एंड बी, विच विल बी रिकॉर्डेड हियर एज टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड to A capital account, B capital account। तब जो प्रॉफिट बचा हुआ है वो कितना है, 10,100 इंटू 10,100 इंटू दिस अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। तो ये लोगों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या है, 3:2, तो 3 + 2 इट विल बी 5, सो इट विल बी रिकॉर्डेड एज 3/5 फॉर A एंड 2/5 फॉर B। तो आप इसको कैसा लिखेंगे, 3/5 2/5। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, दो डिजिट रहने से एक 0 आ जाता, फिर 5 2 ज़ा 10, इट विल बी 20 तो यहाँ पे भी 5 1 ज़ा 5 2 0 2 0। तब यहाँ पे 20 इंटू 3, 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6 0 6 6 0 6 0 फॉर A, 4 0 4 0 फॉर B, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4। तब जो 10,100 का जो प्रॉफिट आ रहा है, जब ए और बी में बांट रहे आप, ए इज़ गेटिंग ए शेयर ऑफ 6,060 रुपीज़, बी इज़ गेटिंग ए शेयर ऑफ 4,040 रुपीज़। नाउ लेट अस डिस्कस हाउ डू वी प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये। देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी, तो दोनों का अकाउंट एक ही साथ बनाए देखिए। सो द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी पर्टिकुलर्स ए रुपीज़, B rupees, particulars A rupees, B rupees. Towards extreme left you will be writing DR debit, towards extreme right you will be writing CR credit, and the heading will be partners capital account or all partners capital account। तो partners capital में सबसे पहले कौन सा अमाउंट लिखेंगे आप, the amount which the partner has invested into the partnership firm। Their capital balances will be recorded, and capital is always a liability to the business, hence capital will always be recorded on credit side because all liabilities have क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे हमेशा कैपिटल का बैलेंस कैसा लिखेंगे आप, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो व्हाट इज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, इट इज 2 lakhs। व्हाट इज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, इट इज 1,50,000। जो यहाँ पे दिया हुआ था, ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2 lakhs, बी हैज़ इन्वेस्टेड 1,50,000। अब ये जो कैपिटल है, इसमें से ये लोग विथड्रॉ भी करे थे ना, ए हैज़ विथड्रॉन ₹10,000, बी हैज़ विथड्रॉन ₹12,000। तो जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्रेडिट में लिख रहे हैं। जब ये लोग पैसे विथड्रॉ करते तो ये लोगों का पैसा कम हो जाता, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एज टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो यहाँ पे ए इज़ विथड्रॉइंग ₹10,000 whereas B is withdrawing 12,000।
कैपिटल लिख दिया आप, ड्राइंग्स लिख दिए। अब बाकी के एडजस्टमेंट्स देखेंगे हम। देयर ड्राइंग्स के बाद ए इज एंटाइटल्ड टू रिसीव ए सैलरी ऑफ ₹8,000, जो यहाँ पे लिखे थे हम, टू सैलरी टू ए। तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में हम डेबिट साइड लिखे, बट पार्टनर के लिए ये इनकम रहता, सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड एज बाई सैलरी। तब ये सैलरी दोनों को दे रहे हैं आप या सिर्फ ए को दे रहे? सैलरी इज बीइंग पेड ओनली टू ए विच इज ₹8,000, सो ओनली 8,000 विल बी रिकॉर्डेड इन ए अकाउंट। नेक्स्ट इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, बी शुड बी गिवन ए कमीशन ऑफ ₹10,000। तो जो कमीशन था वो बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंडिचर था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखे टू कमीशन टू बी। बट वही चीज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए क्या है, इनकम है, सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड एज बाई कमीशन। तो कमीशन ए को नहीं दे रहे आप, सिर्फ बी को दे रहे, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। अलबत्ता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिल रहा, ही इज रिसीविंग एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 10% ऑन 20,000, ही इज रिसीविंग एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन 1,50,000। तो ये बंदे को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा, इट वाज बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ही इज गेटिंग 20,000 एंड ही इज गेटिंग 15,000। उसके बाद ये लोग जो पैसे विथड्रॉ कर रहे हैं, ही इज पेइंग 500 as interest on drawings and he is paying 600 as interest on drawings, so it will also be debited to partners capital account। तो टू जैसा ड्राइंग्स को हम पार्टनर्स कैपिटल से डेबिट कर रहे हैं, उसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी पार्टनर्स कैपिटल से ही डेबिट करेंगे। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ही विल बी पेइंग 500 as इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ही इज पेइंग 600 as इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इसके बाद और क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आ रहा है, इट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए एंड बी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो जो 10,100 का प्रॉफिट आया था, इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज 3/5, 2/5। सो ही इज गेटिंग ए शेयर ऑफ 6,060 रुपीज, ही इज गेटिंग ए शेयर ऑफ 4,400 रुपीज। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के अकाउंट में ए और बी का नाम लिखे, तो ए और बी के अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का नाम लिखेंगे। देयर इट वाज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, हियर इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड as by profit and loss appropriation account, by profit and loss appropriation account। तो ए को जो है ना 6,060 रुपये मिल रहे थे, he was getting 6,060 rupees and B was getting 4,040 rupees। तो how do we balance this? तो पहले ए का टोटल करिए आप। द क्रेडिट साइड द टोटल ऑफ ए कैपिटल अकाउंट इज 2 lakhs plus 20,000 2,20,000 plus 8,000 2,28,000 plus 6,000 2,34,000 plus 60 rupees। So here the total is 2,34,060 रुपीज़। वैसे बी का पहले आप ए का कंप्लीट करेंगे। हियर द टोटल ऑन डेबिट साइड ऑफ ए कैपिटल अकाउंट इज 10,500। तो अब इन दोनों में कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, 2,34,060 रुपीज़ इज मोर देन 10,500। सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन बोथ दी साइड्स एज 2,34,060 रुपीज़। अब ये बंदे के पास जो 2,34,060 रुपीज़ है, इसमें से ही हैज़ विथड्रॉन 10,000 फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंसेस फॉर विच ही इज पेइंग एन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ 500 रुपीज़। तो ये बंदे के पास से ये जो 2,34,060 रुपीज़ का अमाउंट है, इसमें से ये 10,500 डिडक्ट हो जाएंगे। सो द बैलेंस विच इज़ लेफ्ट आउट विल बी रिकॉर्डेड हियर एज टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो सब्ट्रैक्टिंग 10,500, तो पहले 2,34,000 में से 10,000 निकाल दीजिए आप, 2,24,000 बचते। फिर 24,000 में से 500 निकाल दीजिए आप, 2,34,000 में से आप 10,000 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2,24,000 बचते। 2,24,000 में से 500 निकाल दीजिए आप, 2,23,500 बचते। फिर ये 60 रुपीज़ ऐड कर दीजिए आप, 234 में से 10 224 223,500 था, तो 223,560 विल बी हिज बैलेंस। एक बार चेक कर लीजिए आप, 2,34,060 में से 60 रुपीज़ बाजू रख दीजिए आप, 2,34,000 माइनस 10,000 2,24,000, अगेन सब्ट्रैक्टिंग 500 इट विल बी 2,23,500। फिर ये 60 रुपये ऐड कर लीजिए आप, 2,23,560। द सेम विल बी रिटर्न हियर ऑन ऑपोजिट साइड एज बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। By balance brought down, he is having a balance of 2,23,560। अब उसी तरह बी का टोटल करिए आप, he has invested 1,50,000, then he is getting a commission of 10,000, so his capital balance will be 1,60,000 plus 15,000 1,75,000 plus 4,000 1,79,040 rupees। So he has a capital balance of 1,79,040 rupees, जिसमें से ये बंदा 12,000 ड्राइंग्स लिया था, 600 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12,600 पे कर रहा था। सो द हाईएस्ट वैल्यू 1,79,040 रुपीज़ विल बी रिकॉर्डेड ऑन बोथ दी साइड्स। तो अब यहाँ पे 1,79,400 में से क्या करना है आपको, पहले 12,000 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 179 में से पहले 10 सब्ट्रैक्ट करिए, इट विल बी 169। 169 में से 2,000 सब्ट्रैक्ट करिए, इट विल बी
1,67,000, 1,67,000 में से 600 सब्ट्रैक्ट करिए, इट विल बी 1,66,400. फिर ये 40 रुपीज़ ऐड करिए, इट विल बी 1,66,440. तो आज ये बंदे के पास कितने पैसे हैं? 1,66,440. तो समझ में क्या आया? देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जो जो एक्सपेंडिचर है बोल के डेबिट में लिखिए हम, वो चीज़ें इसमें से ये चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में है कि यहाँ पे सैलरी वाज एन एक्सपेंडिचर टू द फर्म, इट इज़ एन इनकम टू द पार्टनर. कमीशन वाज एक्सपेंडिचर टू द फर्म, कमीशन इज एन इनकम टू द पार्टनर. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंडिचर टू द फर्म, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन इनकम टू द पार्टनर. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज एन इनकम टू द फर्म, interest on drawings is an expenditure to the partner. Now their capital balances is 2,23,560, 1,66,440, which will be recorded here as to balance carried down, and the same will be brought down here as by balance brought down, as all capital have credit balances, because capital is always a liability and all liabilities have credit balance. Hope you have understood the topic and hope you have liked the video. If you like my video, do subscribe to my channel AIMS Tutorial for Accounts, and if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments, and do share it with your friends, relatives and all. Your one share can help someone to learn something. See you all in next video. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.